Hello students, welcome to Matamunde Oswald Public School YouTube channel. Please subscribe this channel. Then here I am Supreet Kaur from Matamunde Oswald Public School as a business studies teacher. Today my topic is nature and purpose of business. So business is an economic activity which involves regular production or exchange of goods and services with the main purpose of earning profit through the satisfaction of human wants. Business it's basically it's deal with the economic activity. वो एक economic activity है जो regular produce होता है, regularly हम business करते हैं, किसके बदले goods and services को लेते हैं, विच इज़ द मेन पर्पज़ ऑफ अर्निंग प्रॉफिट. हम गुड्स देते हैं लोगों को, ठीक है, हम प्रोड्यूस करते हैं, गुड्स देते हैं लोगों को, इन रिटर्न हमें क्या मिलता है? प्रॉफिट और मनी दैट वी हैव टू सेटिस्फाई आवर वांट. नेक्स्ट इज characteristics of business activity. So first, an economic activity, it is always deal with the money, so it is an economic activity. Production or procurement of goods and services, we produce the goods and provide other to that services. Then sale or exchange of goods and services for satisfying human need, we produce our goods, then we sell that goods to the customers, in return we satisfy our human needs. Then dealing in goods and services on regular basis, it is a continuous process. So the business activity is going on continuously. Then profit earning, business का main motive क्या है? Profit को earn करना. Uncertainty of return, sometimes there is a debt, ठीक है, कई लोग नहीं देते, जैसे हमने बिज़नेस किया तो हमने किसी कस्टमर्स को गुड्स दे दी, प्रोवाइड कर दी, इन रिटर्न हमें नहीं मिल रहा है, वो बैड डेट हो गया, वो अनसर्टेनिटी होगी, इट मे बी रिस्क. सो 7 पॉइंट्स, एलिमेंट ऑफ रिस्क. सो इन केस हम बिज़नेस करते हैं तो रिस्क लेना ही पड़ता है. नेक्स्ट, देयर इज़ द डिफरेंस बिटवीन इकोनॉमिक एक्टिविटी एंड नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी. ऑब्जेक्टिव्स क्या है? These activities are related to wealth or money. A teacher teaching in a class, it is an economic activity. Non-economic activity क्या है? These activities are non-concerned with money but as performed as pleasure, love and affection. जैसे एक मदर अपने बच्चे को केयर कर रही है. इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ डील विद द मनी, एज जैसे टीचर्स प्रोवाइड करती है लेक्चर्स को, इन रिटर्न उन्हें क्या मिलती है? सैलरी. तो मदर अपने बच्चे को केयर कर रही है, अडोर कर रही है, तो उनको कोई like not related with the money, so it is concerned with non-economic activity. Then types, these are divided into production, consumption, distribution and exchange of goods. और इधर क्या है? These are divided into social, political, religious, charitable and charitable and recreation activity. ओवर इकोनॉमिक एक्टिविटी देर इज़ अ प्रोडक्शन, फिर कंज्यूम करता है, फिर डिस्ट्रीब्यूट करता है, फिर एक्सचेंज होते हैं गुड्स एंड सर्विसेज. बट इन नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ जस्ट रिलेटेड विद द सोशली. स्कोप क्या है? दीज एक्टिविटीज़ दैट टेकन ईदर बिटवीन एन एम्प्लॉयर एंड एम्प्लॉई, और बिटवीन प्रोड्यूसर एंड कंज्यूमर, और बिटवीन प्रोफेशनल एंड क्लाइंट. नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी क्या है? These activities generally take place between family member or between social worker and those who are being served by them. Then return क्या है? They are done with the expectations of earning income in return. उनको वापस income मिलती है. Over here it's a psychological satisfaction in return. उनको psychology satisfaction मिलती है. Then type of economic activity. There are the 3 types of economic activity. First is business. Second is profession. Third is employment. In business, there is a trade, industry, banking, transportation, insurance, warehouse, advertisement. In profession, like we have to do the degrees, then we get these type of profession like medical, legal advisor, chartered accountant. Then employment as a manager, as a clerk, or as a salesperson. Then definition of profession. A profession is a vocation requiring knowledge of some department of learning or a science. Another unprofession is one who follow an occupation as mean of livelihood or gain, or who is engaged in one of the learned profession. मतलब अपनी ज़िंदगी को जीने के लिए इन रिटर्न वो गेन करते हैं प्रॉफिट, ठीक है, वो किसी एक एक्टिविटी में इन्वॉल्व होते हैं, ठीक है. और प्रोफेशन को अर्न करने के लिए वी हैव टू डू पर्टिकुलर डिग्रीज so that we can recognize as a chartered accountant, as a teacher, as a doctor, etc. Then employment, it is a contract between two parties, one being employer and other being employee.
In profession setting, the employer conceive the productive activity journal with the intention of creating profit. एम्प्लॉयर एम्प्लॉयमेंट के बीच में, एम्प्लॉयर और एम्प्लॉय के बीच में एक कॉन्ट्रैक्ट साइन होता है, ठीक है, कौन सी इंटेंशन से वो प्रॉफिट देगा। उस अगर बिजनेस उसको हायर किया है, एम्प्लॉय को हायर किया है एम्प्लॉयर ने, तो उसका बेसिक पर्पज़ क्या होगा, वो प्रॉफिट अर्न करेगा और एम्प्लॉय को इन रिटर्न क्या मिलेगी, सैलरी। To the extent that employment or economic equivalent is not universal, unemployment exists. Sometimes unemployment भी होती है. So there is a comparison between business profession and employment. Mode of establishment कैसे फॉर्म होता है, employment, entrepreneur decisions and other legal formalities if necessary. इसमें entrepreneur decision होती है, legal formalities कुछ करनी पड़ती है. प्रोफेशन में क्या है, मेंबरशिप ऑफ अ प्रोफेशनल बॉडी एंड सर्टिफिकेट ऑफ प्रैक्टिस के लिए उसको सर्टिफिकेट मिलना चाहिए. यहाँ पे एम्प्लॉयमेंट के केस में एम्प्लॉयमेंट लेटर मिलती है. द नेचर ऑफ वर्क क्या है, प्रोविजन ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज टू द पब्लिक को देना पड़ता है. इधर रेंडर ऑफ पर्सनलाइज एक्सपर्ट सर्विसेज, अगर डॉक्टर एक्सपर्ट है तो वो अपनी सर्विसेज एक्सपर्टाइज देता है. इधर एम्प्लॉयमेंट क्या है, परफॉर्मिंग वर्क एज अ सर्विस, कॉन्ट्रैक्ट और रूल्स एंड सर्विसेज. कॉन्ट्रैक्ट होता है उनके बीच में, दोनों ने एम्प्लॉय और एम्प्लॉय के बीच में. क्वालिफिकेशन कोई रिक्वायरमेंट नहीं है, प्रोफेशन के केस में होती है, एम्प्लॉयमेंट में केस में कुछ ट्रेनिंग और कुछ एम्प्लॉयड कुछ होती है, ज़्यादा नहीं. रिवॉर्ड और रिटर्न, प्रॉफिट अर्न, प्रोफेशन फील, सैलरी और वेज मिलता है. कैपिटल इन्वेस्टमेंट रिक्वायर्ड एज पर साइज एंड नेचर ऑफ बिजनेस, इधर लिमिटेड होती है, उधर कोई कैपिटल रिक्वायरमेंट ही नहीं होती. रिस्क, प्रॉफिट आर अनसर्टेन एंड इनरेगुलर रिस्क इज प्रेजेंट. फीस यहाँ पे मिलती है, फिक्स एंड रेगुलर पे, उनको पे मिलती है. ट्रांसफ़र ऑफ इंटरेस्ट पॉसिबल होती है विद सम फॉर्मेलिटीज़. हम प्रोफेशन को चीने, मैं अपनी डिग्रीज किसी और को नहीं दे सकती, वो पॉसिबल नहीं होता. एम्प्लॉयमेंट भी नॉट पॉसिबल. कोड ऑफ कंडक्ट, नो कोड ऑफ कंडक्ट इज़ प्रिस्क्राइब, कोई पर्टिकुलर रूल्स एंड रेगुलेशन नहीं फॉलो करने पड़ते. प्रोफेशन के केस में करने पड़ते हैं और इधर एम्प्लॉयमेंट के केस में भी एम्प्लॉयर की बात सुननी पड़ती है, दैट यू हैव टू फॉलो. देन टाइप्स ऑफ बिजनेस ऑब्जेक्टिव, कितने टाइप्स ऑफ बिजनेस ऑब्जेक्टिव्स हैं. फर्स्ट इज इकोनॉमिक ऑब्जेक्टिव जो रिलेटेड विद द मनी है, दैट यू हैव टू फॉलो. देन सोशल ऑब्जेक्टिव, इट इज़ रिलेटेड विद द कस्टमर सेटिस्फैक्शन. ऑर्गेनिक ऑब्जेक्टिव की सोसाइटी को कोई प्रॉब्लम ना आए एज अ वेलफेयर. देन ह्यूमन ऑब्जेक्टिव जो वहाँ पे बंदे काम कर रहे हैं उनको प्रॉपर एनवायरनमेंट मिले काम करने के लिए. नेशनल ऑब्जेक्टिव जो गवर्नमेंट को सब्सिडीज़ प्रोवाइड करे बिजनेस करने में, गवर्नमेंट को कोई प्रॉब्लम ना आए. देन व्हाट इज़ द रोल ऑफ प्रॉफिट इन अ बिजनेस, ग्रोथ एंड एक्सपेंशन होती है बिजनेस से. इंडिकेटर ऑफ एफिशिएंसी होती है, ठीक है, हम प्रॉफिट अर्न करते हैं तो ऑब्वियसली एवरी पर्सन नीड्स दैट दिस टाइप ऑफ बिजनेस डूइंग वेरी वेल. देन गुडविल और रेपुटेशन इंक्रीज होती है ड्यू टू प्रॉफिट. रिवॉर्ड फॉर रिस्क, ठीक है, रिस्क लेता है तो उनका रिवॉर्ड मिलता है. देन इज़ सर्वाइवल. थैंक यू फॉर दिस चैप्टर and please subscribe this channel.